फिर अगले सेशन में आप लोग सब इस सेक्टर के बारे में बताइएगा कि क्यों इस सेक्टर में आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है। वो तो शुरू में ही हो यस। जाना चाहिए ना, बिफोर वी टेक अप एनी स्क्रिप्ट। अरे तो चाइना से जब मेला हो रहा है तो केमिकल सेक्टर ही उठेगा ना। अभी नहीं नहीं, टाइम उसका नॉट लाइक दैट, मतलब आवर सिस्टम इज लाइक दैट कि वी start with the introduction of the sector, then we go by the script. पहले सेक्टर के बारे में ही बता दीजिए आप लोग, फिर अगर आज तैयार है तो। तो यार मतलब क्या कोई स्पेशल तैयारी इसके लिए करनी है क्या? करनी तो चाहिए। तब तो ठीक है, फिर तो आराम से होता रहेगा। और वैसे आप अभी चाहे तो अभी बता सकते हैं आप। मेरे अभी तो मेरे को जो दिमाग में आएगा मैं बोल दूंगा, बिकॉज अभी आज के डेट में इफ यू गो बाय केमिकल इंडस्ट्री तो इट्स रियली एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज इसका जो 4-5 डिवीजन है, लाइक फार्मा है, एग्रोकेमिकल है, some specialty chemical. Today I was looking at some IPO also, some gem aromatics. They are entering into IPO. तो वो जो है वो क्या फ्रेग्रेंस, वो जो फूड प्रोडक्ट में और जो माउथ वॉश और ये कॉलगेट वगैरह सब उनके क्लाइंट हैं, तो उनकी भी जो वो उस टाइप की केमिकल भी है। प्लस द वास्ट एरिया इज पेट्रोकेमिकल, जिससे तो बिल्कुल वी कैन नॉट थिंक द कंट्री विदाउट पेट्रोकेमिकल नाउ। एंड if we have to improve country GDP, then we have to depend on this sector. Or this sector has really grown in this country, and country is targeting by 2040, मतलब ये I am not remembering the figure, but हम कितना बिलियन डॉलर की बात कर रही है कंट्री तो। और इवन रिलायंस इज गोइंग फॉर दैट केमिकल टू ऑयल टू केमिकल बिजनेस। तो और दे आर गिविंग इक्वल थर्स्ट देन माने देन रिफाइनरी एंड अदर पेट्रोकेमिकल। तो और आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में भी इसका काफी ओरिएंटेशन है, इसका स्कोप है। Overall, it is very helpful in growth of GDP, employment, and all that. And for agrochemicals also, मतलब जो हमारी जो जीडीपी का बेस है एग्रीकल्चर, जिसके लिए एग्रोकेमिकल्स की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, विच वी आर बेसिकली इम्पोर्टिंग। तो उस सेक्टर में अभी नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं और उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। So this is what I feel. This industry is very important. This is all from my side. बट हाउ विल यू compete with चाइना? Now we are making thrust on Make in India. It will take some time, but it doesn't mean कि भाई हम attempt ही ना करें. The attempt is very good because even private players, so many private players, as I said, कि Reliance is aggressively looking into this sector. प्लस गवर्नमेंट का भी काफी थर्स्ट है कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, देन एग्रो केमिकल में आपकी डिपेंडेंसी मेक इन इंडिया में होनी ही होनी है। इट विल टेक टाइम। अब हम आई कैन नॉट कंपेयर 20 ट्रिलियन जीडीपी विथ 4 ट्रिलियन जीडीपी। तो compete करने वाली बात तो अभी एकदम से नहीं आएगी, लेकिन हाँ, वी कैन ग्रेजुअली वी कैन इम्प्रूव इन दिस फील्ड। May I say something, sir? Why not? Why not? Yeah, so I found one article here. I'll just summarize it.
It says it is a Indian chemical industry is a major contributor to the national economy, ranking sixth globally in the chemical production and third in Asia. It's a diverse sector producing over 80,000 chemical products and contributing 7% to the India's GDP. Uh, industry is projected to grow significantly, potentially reaching $300 billion by 2025 and this year end. Uh, it is a major export category. Then India is the leading producer of chemicals, including agrochemicals, dyes, and pigments. So these could be the sector and specialty chemicals. It also exports chemical to over 175 countries. Uh, the industry encompasses a wide range of chemicals from bulk chemicals to specialty chemicals, petrochemicals, agrochemicals, polymers, and fertilizers. The sector is experiencing growth due to increasing domestic demand, government initiatives, and growing export market. Specialty chemicals is a high growth area with significant potential of both domestic consumption and exports. Indian government is actively supporting the industry through policies like Chemical Promotion and Development Scheme and establishment of petroleum, chemical, and petrochemicals investment regions. The sector is attracting substantial investments with plans to further boost output and create employment opportunities. Now, challenges. Import dependence is one of the challenge. While India is a major producer, it also imports a significant amount of chemicals, particularly petrochemical intermediaries. And there is a competition from other global players, particularly in specialty chemicals from China. Sustainability, there is environmental concerns and the need for sustainable practices, which are becoming more and more important. Demand wise, there is another table here. It says rise in demand from end user industries such as food processing, personal care, and home care is driving the development of different segments in India's specialty chemical market. Export of chemicals and allied products reached 9,22,28,000 crores, about US dollars 108 billion during financial year 25. Chemicals and petrochemicals demand is expected to nearly triple and reach US dollars 1 trillion by 2040. India is the sixth largest producer of chemicals in the world and third in Asia, contributing to 7. ये हो गया already हमने देख लिया. Then opportunities में दिया हुआ है. India's specialty chemical companies are expanding their capacities to cater to rising demand for domestic and overseas, with global companies seeking de-risk their supply chains, which are dependent on China. The chemical sector in India has the opportunity for a significant growth. There is a Dahej PCPIR project in Bharuch, which has attracted an investment of 1 lakh crores, equivalent to US dollar 12 billion, and is expected to generate 32,000 jobs. The Indian chemical industry is currently valued at 220 billion US dollars and is expected to reach 300 US dollars, 300 billion US dollars by 2030 and 1 trillion by 2040. Then policy support. There is a PLI schemes which were introduced to promote bulk drug parks with a budget of 1629 crores rupees. Under the union budget of 2025-6, government is allocated rupees 1,61,000 crores to the Ministry of Chemical and Fertilizers. The Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Region set up at Paradeep has attracted an investment worth rupees 73,518 crores, resulting in an employment of 40,000 people. A government to open 25,000 Jan Aushadhi Kendras to make medicines available at affordable prices. Then there is an increasing investment and spending. FDI inflows in chemical sector other than fertilizers has reached 1,42,000
600 crores in financial year 25, and investment of 8 lakh crores is estimated in the Indian chemicals and petrochemical sector by 2025. There's the points which are there in this article that I found. Sir. That's all from my side. तो क्या लग रहा है इसको पढ़ने के बाद? पढ़ने के बाद, the first thing is for our purpose it is worth reviewing. It is going to grow. There is a lot of incentives available from the government and also participation from the private sector. Plus there is an opportunity in the world chemical market. So whether we are able to compete with China, but there is even for the second player there will be, or second or third or fourth, wherever we are, we will have an opportunity to this industry is going to grow. That is what is the crux of the findings. So it's worth investing into and studying for. Yeah. Anybody else? Besides, I mean, as whatever he read, out of that I could make out that there is many specialty chemical companies are going through expansion process in a big way. So that also shows that there is potential for the industry in the market. And of course, I have got a few companies which have given me good returns as well. One of them is Himadri Chemical, Specialty Chemical. The other one is Meghmani Organics. And third one is Epigral, Epigral. That, of course, had come out of, by demerger from Meghmani Organics. But these shares which were given to us on a free basis is now worth about 2,000 rupees from 1900. So that's also a big company in this particular field. And besides, as we know, there are several components like starting from agrochemicals to various chemicals which are used in different companies, like whether it is paint industry, whether it is adhesives, Pidilite, etc. Then there are so many other chemicals which are used for different kind of activities, pharma, fertilizer and all that. So the sector definitely has good potential, and of late it has been doing well also. So probably we can look into this sector. That's what is my view. Okay. Anybody else? अपने व्यूज दीजिए भाई. Quickly. Bhuvi? Nobody is responding. Why? Munish, Arora साहब, कुमार वैभव, नीलोफर, स्पंदन. सर हम लोग तो सारे केमिकल से घिरे हुए हैं. हाँ, केमिकल से जुड़े हैं. ठीक है. घिरे हुए हैं. क्या हो गया? घिरे हुए हैं. एनी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग इट रिक्वायर्स सम केमिकल. आप देख रहे हो वॉशरूम में जितने आपके टॉयलेट क्लीनर हैं आजकल, अलग अलग लेमन फ्लेवर, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर आ गए हैं. ये सब क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री से ही जो है इनके फ्लेवर जुड़ के वैसे वैसे भेज रहे हैं वो. और अपनी कंट्री में सोडा ऐश और ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स थे ये तो काफी थे ही. और एग्रो केमिकल्स भी अब बहुत ज्यादा वो है. चाहे जितना मर्जी ऑर्गेनिक का वो हो रहा है, एग्रीकल्चरल जो है उसमें काफी केमिकल का यूज है. और स्पेशलिटी केमिकल्स तो खैर अपने पे हाईली प्राइस, हाईली मार्जिन ओरिएंटेड है. और हम जैसे काफी हमारी पोजीशन अच्छी है तो एक्सपोर्ट भी होगा, क्योंकि ये पोल्यूटिंग क्या है कि इंडस्ट्री है. और इसमें जो अभी है ग्लोबल, उसमें अफ्रीका,
चाइना और इंडिया ही बचे हैं जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। तो ये काफी इसका पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि अगर कंपनीज को एनालाइज किया जाए और उसका पोटेंशियल आगे ग्रोथ का कैसा है, वो काफी फायदेमंद रहेगा। और सर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडिया की, तो सर जैसे फूड में रिक्वायरमेंट होगी, तो भी मतलब हर चीज में जो भी हम खा रहे हैं उसमें भी मिक्स होंगे आगे चल के, तो फूड सेक्टर में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आएगी आगे चल के। दैट्स ऑल। केमिकल तो बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसमें क्या हम लोग एग्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं कि नहीं, अभी जिस पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, या स्पेशलिटी अभी जिस केमिकल? सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये तो जितने सब थे तो यूनिवर्सल है। ये तो आज से 5 साल पहले भी होल्ड गुड कर रहे थे, 2 साल पहले भी होल्ड गुड कर रहे थे। तो ऐसा क्या रीजन है कि आज जो हम इस सेक्टर को प्रेफर कर रहे हैं? सर क्योंकि इस ये आदमी हर एक्टिविटी में घुस गया है ये। एनी एक्टिविटी, वेदर एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, हर जगह पे क्या है, केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। तो इसलिए क्या है कि अब हमारी पॉपुलेशन में कहाँ कहाँ किसका कितना कंजम्पशन और ग्रोथ पैटर्न है, ये तो जब इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा फिर। या फिर देखेंगे टेक्सटाइल में भी किसका बहुत सारे कितना केमिकल यूज कंट्रीब्यूशन होते है। हैं, कॉस्मेटिक्स में भी होते हैं, ऑयल्स, ऑटोमोबाइल, सब केमिकल ही है। लेकिन ये तो हमेशा थे, पिछले साल भी थे, उससे 1 साल पहले भी ये सब थे। लेकिन फिर ये सेक्टर तो गिर गया। तो आज क्या हो रहा है इस सेक्टर में जिसके कारण जो है इस सेक्टर को हम प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? तो हमें एक्चुअली सर ऐसे मेडिकल कुछ उसमें भी। मेडिकल भी है, फार्मा भी है, ये सभी केमिकल्स ही हैं। लेकिन ये तो कल भी थे और परसों भी थे, तो फिर ये सेक्टर गिरा क्यों? सप्लाई ज्यादा होगी सर। करेक्ट। तो हम्म। इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, ग्लोबल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, और ग्लोबल स्पेयर कैपेसिटी भी है। तो जिसके पास स्पेयर कैपेसिटी है वो तो किसी भी प्राइस पे बेच के अपनी इंडस्ट्री को चलाए रखेगा। तो ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसने कि आज इस सेक्टर को वैल्यूएबल बना दिया? तो ये देखिए, ये एक इसमें रिपोर्ट है, इसको हम लोग देख सकते हैं, केमिकल सेक्टर पे है, इंडिया के बारे में ही है। तो इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स मैकेंजी की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और 2024 में 220 बिलियन डॉलर्स का है, और 4 साल के बाद 300 बिलियन, तो करीब 80 बिलियंस, 30%। 30% ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 4 years इफ यू गो बाय दिस। 1 साल तो उसमें खत्म हो चुका है। वैसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। मैकेंजी रिपोर्ट ऑल्सो इज सेइंग दैट 10-12% ग्रो करेगा, एंड देन बाय 2040 और 2027 दिस विल ग्रो बाय 7-10%। तो बेस बड़ा हो जाएगा तो ग्रोथ का रेट कम हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ का रेट काफी शार्पली डिक्लाइन हो रहा है बाय 2040। राइजिंग डोमेस्टिक कंजप्शन तो है, लेकिन इन्वेंट्रीज भी बढ़ती जा रही हैं। तो वो इन्वेंट्रीज ही नहीं खत्म हो पा रही हैं, तो भी कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे होंगी?
अभी तो प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, कंजप्शन कम है। तो ऐसा क्या है कि अब जो है हमारा कंजप्शन बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं। तो अगर आप जीएसटी के बारे में कह रहे हैं कि जीएसटी से कुछ फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है उससे। चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर फॉर इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, इससे हमारा फोकस पे चला जाएगा। सोलर तो हम कह सकते हैं कि सोलर के लिए सोडा ऐश की जरूरत पड़ती है। रेयर केमिकल्स के बाद स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्पेशलिटी केमिकल में तो दिख रहा है, रेयर अर्थ केमिकल्स में भी दिख रहा है। उसके अंदर चिप इंडस्ट्री बढ़ेगी, दे विल रिक्वायर सम सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स। फार्मा के अंदर बहुत सारा केमिकल यूज होता है, एपीआई जरूरत पड़ती है, लेकिन फार्मा की सेक्टर की खुद ही ग्रोथ नहीं हो पा रही है, खुद ही उनकी इन्वेंट्री नहीं खत्म हो पा रही है। तो इसके अंदर तो कुछ खास दिखता नहीं कि हमें कुछ फर्क पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं बढ़ेगा तो फिर इसके कंजप्शन कैसे बढ़ेगा इसका, और ईवी आएगा तो और इसका कंजप्शन कम ही होगा। तो पेट्रोकेमिकल्स के अंदर स्कोप क्या है आने वाले दिनों में जिसके कारण कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होगी? 10-12% ग्रोथ तो होगी, इसके बारे में तो ठीक है। तो ये ग्रोथ ड्राइवर्स जितने हैं, ये मैकेंजी ने 4-5 जो बताए हैं, इसके अंदर जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म नहीं होंगे तो फिर एग्री केमिकल्स में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्पेशलिटी केमिकल में जरूर कुछ हो सकता है। तो स्पेशलिटी केमिकल में तो समझ में आ रहा है, सुपर स्पेशलिटी केमिकल भी समझ में आ रहा है, ग्रीन केमिकल्स में भी कुछ समझ में आ रहा है कि आप प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करेंगे और यूटिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन केमिकल सेक्टर का एक्सपोर्ट होगा, केमिकल सेक्टर की रिक्वायरमेंट फॉरेन कंट्रीज में बढ़ेगी, ऐसा तो लग नहीं रहा है जब तक कि ये सब ट्रेड वॉर्स वगैरह, टैरिफ वगैरह का इशू रिजॉल्व ना हो। हो सकता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते ही चली जाए, तो एक्सपोर्ट वाला सर पार्ट लेकिन तो। केमिकल वाले में कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि केमिकल बड़ी पोल्यूटिंग वो होता है ना। इसको जो भी एडेसिव बनाना या ऐसे बनाना, उसमें काफी एनवायरनमेंट पोल्यूशन का वो रहता है। इसलिए ये तो जो है सोर्सेज जो है ना, 4-6 कंट्रीज के पास ही रहेंगे जिनकी पॉपुलेशन सस्टेन कर सकती है, जिनको फिर वो जो इंडिया से सेक्रीफाइस कर सकते बात है, हैं। वो इंडिया से लेंगे इसकी बात है। नहीं नहीं, लेकिन चाइना, इंडिया, अफ्रीका, यही रहेंगे बात सोर्सेस। तो इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करेगी क्या? अब जब लिमिटेड सोर्सेज होंगे तो फिर तो ग्रो इंडियन करनी चाहिए इंडस्ट्री सबको ही। चाइनीज इंडस्ट्री से compete नहीं कर पाएगी, तो प्राइसिंग पावर जब तक नहीं आएगी तब तक मार्जिन्स कहाँ से आएंगे? हाँ, चाइना से तो compete करना है क्या को बड़ा मुश्किल। उसी कारण तो हम मारे गए, उसी कारण इस सेक्टर ने सफर किया। अब ये गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं, पीएलआई, पीसीपीआईआर, सीडीपीएस, प्लास्टिक पार्क स्कीम, but will all this make this sector extraordinary sector? I have got my doubt. इससे पहले जो है बहुत सारी चीजों नहीं, को गवर्नमेंट का तो जब कंजप्शन की गवर्नमेंट का डिमांड, सपोर्ट टाइम में
शॉर्ट टर्म इफेक्ट ला सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट सेक्टर को उठाएगा नहीं कभी भी। क्या है, ये तो डिमांड अगर कहीं ग्लोबल में है, वो ऐसी कोई वो होगा पोटेंशियल, तो वही उठा सकती है। बाकी सरकार का तो गवर्नमेंट का पीएलआई दे सपोर्ट है, देगी इसके तो मामले अपनी की सेक्टर डोमेस्टिक की में हालत सर। खराब है। सेक्टर की हालत खराब है, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इट इज एक्चुअली हाँ, और नेगेटिव, इट इज उनको नॉट पॉजिटिव। तो जिस सर सेक्टर को कंपनियों ने जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगा रखी है सर, अभी तक वही मतलब अच्छी तरह यूज नहीं हो पा रही है, जो हाँ, तो एक्सपेंड वही कर तो रहे हैं कह अभी रहे ये। हैं कि ओवर कैपेसिटी है, इन्वेंट्री नहीं हो रही है। तो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक रिटर्न कैसे, आरओसी कैसे आएगा? बात है कि जब तक आरओसी नहीं आएगा तब तक प्राइस नहीं बढ़ेगा। प्राइस नहीं बढ़ेगा तो फिर इन्वेस्ट करने से फायदा क्या है? और केमिकल सेक्टर के अंदर आरओसी आने के लिए उनको प्राइसिंग पावर चाहिए। प्राइसिंग पावर तो तब होगी जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी। लेकिन अभी तो उल्टा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। और इसके जो वैल्यू चेन के नेक्स्ट सेक्टर्स हैं, वहीं पे ग्रोथ नहीं है। तो जब वहां पे ग्रोथ नहीं है तो यहाँ पे ग्रोथ कहाँ से आ जाएगी?